یہ جو ہمارا کنونشن رہا ہے یہ آج اس لیے رہا کہ ہم چاہتے ہیں پورا یہاں پر نئے طریقے سے ڈیولپمنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. جو کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے لیڈر صاحب بہادر انرجیٹک جو ہے سجاد غنی لون صاحب، وہ ایک آنسٹ ہے، اس کا آئینہ پورے دنیا کے سامنے ہے، وہ ایک بے داغ انسان ہے. تو وہ تو آپ دیکھتے ہیں سب ہماری یوتھ کے لیے آج یہی کنونشن تھا کہ یہاں پر ہم نئے چینجز لانا چاہتے ہیں اس پی سی کے حوالے. تبھی ہماری میٹنگ رہی تھی کہ جو اس سے پہلے یہاں پر ہوا کر رہا تھا اب وہ نہیں چلے گا، اب چور کچہری نہیں ادھر چلے گی رفیع آباد میں یا نارتھ کشمیر میں، ہم ویسا ہونے ہی نہیں دیں گے. میڈم ایک عہدہ ملا ہے، بالکل آپ کو ایک عہدہ ملا ہے، بالکل. آپ اپنے رفیع آباد کے لیے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ خاص کر جو مطلب نوجوان ہیں ان کے لیے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ میں نے جو یہ عہدہ میرے کو دیا گیا ہے، مجھے اس پہ فوکس ہے آنلی اپنے نوجوانوں کو بزنس کے ریلیٹڈ ڈیولپمنٹ کرنے کا. وہ میں کانفیڈنٹ کے طور پہ کہہ رہی ہوں، انشاءاللہ میں وہ کر لوں گی ان کے ساتھ جتنی بھی ان کو ہو سکے مجھ سے اتنا میں ان کو اس میں ہیلپ کر لوں گی. میڈم آپ نے ریسنگ اسٹیشنز گنوائے آج 3 ریسنگ اسٹیشن. بالکل بالکل. کیا آپ کو پتہ ہے وہ کب ملے تھے اور کس حکومت میں ملے تھے؟ وہ جس حکومت بھی ملے تھے، لیکن ہمارا رفیع آباد میں جو شہر ہے وہ تو کون ہے؟ وہ تو وکیل صاحب ہے. بٹ ملے کانگریس کی حکومت میں، مگر دلائے کس نے؟ دلانے والی بات ہے اس سے پہلے جو بھی لیڈران یہاں پہ تھے کن کن حکومتوں سے بنے ہیں؟ این سی پی سے بنے ہیں جو کتنی پرانی پارٹی 40 سال سے اس نے دلائے ہیں، انہوں نے دلائے ہیں. یہاں پر این سی سے 6-7 سال یہاں پر لیڈرس رہے ہیں حکومت میں، تو انہوں نے کیا دی ہے؟ 40 سال تک وہ ایک ریسیور اسٹیشن تک نہیں دے پائے. ہاں غنی صاحب نے دیے لیکن کانگریس نے دلوائے نا. جس کسی نے بھی دلوائے ہمیں رفیع آباد کو وکیل صاحب نے دلوائی. وکیل صاحب یہاں پر نہ ہوتا تو رفیع آباد محروم رہتا ان چیز سے. ٹھیک ہے، کانگریس نے ڈائریکٹلی آ کے یہاں پر تھوپا نہیں ہے. اچھا میم، یہاں آئی نہ تھا وکیل صاحب. آپ نے ایک اسکیم گنوائی بالکل بالکل. وہ اسکیم کس ڈپارٹمنٹ کی ہے؟ وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے تھی. ٹھیک ہے، بٹ لائی ہے وکیل صاحب نے یہاں پر. چرچے وکیل صاحب کے سینٹرل کی اسکیم ہے، ہم مانتے ہیں سینٹرل سے اتنی اسکیمیں آتے ہیں، بٹ لوگ تو ان کو لیڈر تو ان کو کھا جاتے ہیں کمیشن بیسڈ پہ. آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ بالکل ہے؟ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں بٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے بندے آگے ان اسکیموں کو لانے چاہیے نا. ہر کسی جگہ پہ موجود ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وکیل صاحب نے آنا ہے؟ ہر جگہ پہ ہے موجود. ہمارے رفیع آباد میں پہلے اسی نے تو چرچا کیا، اس کا ہم کہہ سکتے ہیں ایسا؟ کہاں پر مجھے دکھا اور کہاں پہ ویڈیوز فنڈنگ ہے اور مجھے دکھاؤ کہاں پر آپ کو آ رہے نظر اسکیمز. میں نے رفیع آباد کے سوا ایسے جتنا رفیع آباد میں ہوں گے ہر جگہ پر بٹ منیمم ہوں گے رفیع آباد میں. ہاں بارہمولہ میں اس وقت اکیلے سوشل ویلفیئر وہ تو ڈسٹرکٹ ہے کہ اگر وہاں نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ شرم کی بات ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے بات کرو، جو فار فلنگ ایریاز ہے ان کی بات آپ کرو. پیپلز کانفرنس میں آپ کو ایسا کیا لگا کہ آپ نے پیپلز کانفرنس کو ساتھ دیا؟ یہ تو آنےسٹ ایک پارٹی ہے، یہ پبلک کا، یہ تو یوتھ کے لیے ہی نکلی ہے. ان کا اپنے لیے وہ نہیں چاہے پراپرٹیاں بنائیں گے یا یوتھ کو بیوقوف بنائیں گے. یہ وہ نیڈر پارٹی ہے، پہلے لیڈرز خود نکلیں گے، خون بہائیں گے، جان دیں گے اپنا. یہ کسی کے بچوں کو ہاتھ میں پتھر نہیں تھما کے بولیں گے کشمیر کو آزاد کراؤ. ہم اس کے لیے خود نکلیں گے، پہلے پیچھے اپنے یوتھ کو رکھیں گے، نہیں کہ یوتھ کو آگے کر دیں گے. سر آج کا جو یہ پروگرام ہے یہاں پہ کس مدعا سے، کس غرض سے آپ کے آج کا مدعا یہ ہے؟ بدلاؤ کی تحریک جو جموں کشمیر پیپلز کانفرنس ہے، یہ کیروان آف چینج کی شروعات ہے. یوتھ کنونشن سے ہم نے شروعات کیا ہے. ہم نے تاہے دل سے اپنے بزرگوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تمام نوجوانوں کو انوائٹ کیا ہے. ایک ورکرز کنونشن تھا جس میں ہم وکیل صاحب نے انوائٹ کیا تھا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بدلاؤ کی تحریک جو جموں کشمیر پیپلز کانفرنس ہے اس کے متعلق تھا، اس کے ہمارا جو مشن ویژن ہے تبدیلی کا اس ریلیٹڈ تھا. سر اگر ڈیلیمیٹیشن کمیشن کا رپورٹ خالی یہی رہتا ہے کیا پیپلز کانفرنس الیکشن لڑے گی؟ دیکھیے، ڈیلیمیٹیشن کمیشن کے رپورٹ یا نہیں رپورٹ سے پیپلز کانفرنس کے الیکشن لڑنے یا نہ لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا سٹینڈ نہیں، انہوں نے یہ بات نہیں بولی کہ میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں یا کیا کروں گا. انہوں نے اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے اور اس ناراضگی کے ظاہر کرنے کا یہ مقصد ہے اپنے لوگوں کے لیے. انہوں نے میری ذات کے لیے یا اپنی ذات کے لیے ناراضگی ظاہر نہیں کی ہے. انہوں نے کشمیری کے حق میں بات کی ہے اور وہ کشمیر اور کشمیری کے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے. سر آپ پر اکثر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ بی ٹیم ہے بی جے پی کی. دیکھیے، بدقسمتی سے ہمارے جو نیشنل کانفرنس جو الزام لگاتی ہے، الزام تراشی کے بہت ہی ایکسپرٹ بن چکے ہیں. منتری منڈل جب عمر عبداللہ صاحب کا دیکھا جائے تو بی جے پی کی گود میں وہ کھیلتے تھے. فاروق صاحب نے جو سیف الدین سوز صاحب کو نکالا تو اس وجہ پہ نکالا، کل کے انٹرویو میں بھی آیا ہے، اس لیے نکالا کیونکہ انہوں نے بی جے پی کے خلاف ووٹ دیا. جن کے رشتے بی جے پی کے ساتھ، جن کی ساری سیاست، جن کی آذان
बीजेपी या आरएसएस ने दी हो, वो दूसरों को इल्ज़ाम तराशी करे, ये कश्मीरी अब यकीन इस पर कश्मीरी भरोसा नहीं करेगा। सर अगर आपकी हुकूमत आती है, आप बदलाव चाहते हैं, किस तरह का बदलाव होगा? हमारा बदलाव जो मिशन विजन सजाद गनी लोन साहब का है वो ये है कि नौजवान जो है वो तर्जुमान है जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में नौजवान को एक्सप्लॉइट किया गया है। नौजवान नारे देता है, नौजवान जलसों में आता है, नौजवान ने पैलेट खाए, नौजवान ने बुलेट खाए, नौजवान ने जेल खाया, लेकिन नौजवान की तर्जुमानी न कोई करता है, न नौजवान को तर्जुमान बनने दिया जाता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सजाद गनी लोन साहब और गनी वकील साहब ने उन्होंने यहाँ वकील साहब ने मुझे यहाँ लाया, सजाद गनी लोन साहब ने यूथ प्रेसिडेंट बनाया। आप देखेंगे हमारी पार्टी इज़ यूथ फोकस्ड। बाकी विमेन पावर में भी हम बिलीव करते हैं, गर्ल पावर में बिलीव करते हैं, यूथ पावर में बिलीव करते हैं, और बाकी हमारे जितने मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं, बुज़ुर्ग हैं, उन सब का साथ चाहिए। देखिए जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जितने यहाँ पर आप देखोगे, हम जो लोगों के वर्कर हैं, हम में जज्बा, जुनून, हिम्मत बहुत है, लेकिन हमें लोगों का साथ चाहिए इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए। इमरान साहब ये बात बताइए, आप फैक्चुअल ग्राउंड पे बात करते हैं, जब हिलाल रातर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, आप ही के गनी साहब ने बारामूला हायर सेकेंडरी में उन पर ताने कसी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लूट खसूट में बचे। क्या आपकी पार्टी में आने से उनके वो पाप धुल गए? देखिए मैं उस वाकया को तो सुना नहीं है, लेकिन मेरे पास वीडियो मौजूद, मेरी बात सुनिए। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं, फितरतन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे लोगों ने भरोसा अब किया है, और हमें भी ये फितरत हमारी है कि हम आप पर भरोसा करेंगे। इल्ज़ाम तराशी तब कैसे हुई होगी, तब का वक्त और मौजू क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप देखेंगे हिलाल रातर साहब पे तो फर्जी केस है। अगर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन जैसा केस आप पर, मुझ पर या उस पर होता, वो तो कब का जेल गया होता। लेकिन हिलाल रातर जैसे अच्छे बिजनेसमैन को क्यों यहां पहुंचाया गया वो आप भी जानते हैं, और उसने पीपल्स कॉन्फ्रेंस या किसी ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं ज्वाइन की। अगर आपकी बात में कोई सच्चाई होती तो केस खत्म हो चुके होते, वो तो खत्म हुए नहीं। अगर कोई ऐसी चीज होती फिर तो वो धुल गए होने चाहिए थे आपके हिसाब से। इसलिए जब कुछ धुला नहीं है, लेकिन चूंकि सजाद गनी लोन साहब में एक किरण दिखती है, सजाद गनी लोन साहब में एक लीडरशिप हमें नजर आती है, सजाद गनी लोन साहब पे अब ट्रस्ट, भरोसा लोग करते हैं, तो उस चीज की वजह से उसको रोका जाए। ये इल्जाम तराशी से रुकने वाला नहीं है। ये कारवान बढ़ेगा और तब्दीली की तहरीक आगे चलेगी। तब्दीली की तहरीक आगे तो चलती रही, क्या परवेज साहब पे भी जो इल्जाम है बेबुनियाद है? देखिए अगर उन पर हम आए, आप देख लीजिए फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, तमाम लोगों पर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं फिर हर किसी फर्द पर उंगली उठ सकती है। खुद यहां तो फिर आप इल्जाम तराशी पर आए तो हर किसी पर आए। परवेज साहब पर यह इल्जाम है कि वो प्रो कश्मीर थे। आपको यह सवाल नहीं करना चाहिए। अगर आप देखो मीडिया के कितने हैं जिनका यूएपीए है, क्या उन पर भी हकीकी इल्जाम है? मैं ये आपसे पूछता हूं। मैं वो बात नहीं, क्या उन पर भी नहीं? मैं मीडिया की तरफ से वापस जवाब दूंगा, नहीं। जो मीडिया वाले आपके बंद है वो भी किस वजह से बंद है? माहौल ऐसा बन चुका था 2019 में। फैक्चुअल ग्राउंड ये है, 2019 में माहौल ऐसा बन चुका था, हर कश्मीरी दुश्मन बन चुका था। इसलिए सजाद गनी लोन साहब खड़े हुए हैं कि कश्मीरी को हम मार जो पड़ रही है उसको हम रोके। उसको हम नहीं करें कि बाकी पार्टियों, पीडीपी और एनसी के लीडरान जो हैं वो कश्मीरी को मार दिलाना चाहते हैं और वहां जाके रोना चाहते हैं। उनकी जो सियासत है वो सिर्फ रोने पर चली है। सजाद गनी लोन साहब की सियासत जो है वो कहता है हम कश्मीरी को बचाने निकले हैं, मार हम खाएंगे लेकिन कश्मीरी को और कश्मीर को बचाएंगे। आखिरी सवाल सर, फयाज अहमद जो है उनके वालिद साहब कह चुके हैं कि उनका जो बेटा है मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन पीसी अभी भी उनका इस्तेमाल कर रही है। देखिए पीसी किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। कल आपके फयाज जो है वो ताहे दिल से हमारे पास आता है। हमारे दरवाजे दिल हर किसी के लिए खुले हैं। आप मीडिया से मैं गुजारिश करूंगा, एक अच्छे इंसान या अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो उसकी तकलीफ को मत उछालिए। फयाज एक इंसान है जिसको अल्लाह ताला ने बनाया है। आपको और मेरे को कोई हक नहीं है उसका कोई भी ऐसा, उस पर कोई भी ऐसी उंगली उठाना जिससे हमें अल्लाह ताला को आखिरत पे जवाब देना होगा। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे कि आप फयाज या किसी ऐसे फर्द के खिलाफ मत बोलिए। चलने दीजिए, देखिए चलने दीजिए। ये सिलसिला, देखिए ये सिलसिला, देखिए आप अगर मेरी जात के रिलेटेड क्वेश्चंस चाहते हैं वो आइए पूछिए, आप मुझे इंटरव्यू में पूछ लीजिए, लेकिन यहां पे मौजू जो है उस मौजू पे अगर कोई सवाल है सवाल कीजिए। मैं यहां पर किसी भी सवाल का जवाब देने आया हूं इन रिगार्डिंग to convocation, in regarding to this convention, youth convention, in regards to any other issue related to public, in related to my personal page or my
ज़ात, you have nothing to do सर, here. अगर हम Come for नॉर्थ an कश्मीर interview. की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में आप पिछले 4-5 साल से है, तो कितना डेवलप हो गया है नॉर्थ कश्मीर अभी? देखिए जनाब, नॉर्थ कश्मीर में पीपल्स कॉन्फ्रेंस 4-5 साल से नहीं है। मैं आपको ये आपके जरिए ये वाजिया करना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस 45 साल पुरानी पार्टी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने जेल ही जेल देखा, सजाद गनी लोन साहब ने जेल देखा, इंट्रोगेशन देखा। ये कोई 90 की उभरी हुई पार्टी नहीं है, ये कोई एब्रोगेशन के बाद बनी पार्टी नहीं है। ये पार्टी 45 साल पुरानी पार्टी है और इसको आज तक उभरने नहीं दिया, क्योंकि पुरानी सियासत इतनी ही होती थी। गांव में कोई नौजवान, गांव में कोई लीडर उठे जो सच बोले, बोला जाता था ये जी मिला हुआ है। सर 370 के बारे में आपकी क्या यार 370 तो हर किसी के दिल में है। मैं 370 का जो 5 अगस्त 2019 का डिसीजन नामंजूर नामंजूर नामंजूर, उसके अलावा क्या कह सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। गनी साहब, पहले तो आपका खैर मकदम है, आपने मीडिया को टाइम दिया। उसके बाद आज का जो कन्वेंशन, उस बारे में आप बताइए। देखिए, जो हमारा कन्वेंशन था ये बिल्कुल सरकर्दा साथियों का था और इसमें बड़ा अच्छा कामयाब कन्वेंशन रहा। इसमें हमें अपने वर्करों को, कारकुनों को जागृति करने की मौजूदा सूरत हाल से, सियासी सूरत हाल से भी, इक़्तिसादी सूरत, क्योंकि सियासी सूरत हाल इस वक्त जम्मू कश्मीर में बड़ा मकबूल है, क्योंकि ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को तजलील करने के मुतरादिफ है। आप देखिए, पहले आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ तो जलील किया गया, ह्यूमिलेट किया गया हम लोगों को। उसके बाद स्टेट हुड भी छीना गया, ये भी एक ह्यूमिलेशन है। और अब डिलिमिटेशन जो है, तो उस सिलसिले में भी जो फैसला आया वो भी एक ह्यूमिलेशन है। इसलिए हमने मरकजी सरकार से अपील की, अब ये ह्यूमिलेशन बंद करें और किसी तरीके से ऐसे इकदाम उठाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स उठाए, जिससे यहाँ के लोग मरकज कौमीदारी के नजदीक हो जाए। लेकिन जो वो उठा रहे हैं, इससे यहाँ के लोग दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमने ये बात भी की, अगर आप यहाँ सही मानों में इंतखाबात कराना चाहते हैं जिसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन, तो हमारी ये डिमांड रही शुरू से, तो इलेक्शन से पहले स्टेटहुड ग्रांट होना चाहिए। और इसी तरीके से मुल्क बहुत बड़ा है, आपने किसानों के लिए का कानून बनाया था, वो वापस लिया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप 370 आर्टिकल जो है रिस्टोर करोगे। इससे ज्यादा ये एक ब्रिज था, जम्मू कश्मीर और मुल्क के दरमियान एक ब्रिज था। इस ब्रिज को मिसमार करने से सर क्या आप मानते हैं कि ये जो 370 वापस आ सकता है? वो उनमें दूरी बढ़ती जा रही है। सर क्या आप मानते हैं कि ये जो 370 एब्रोगेट हो गया है सर, तो सर वो वापस आ सकता है? सर क्यों नहीं आ सकता? देखो किस तरह से आपकी स्ट्रगल किस तरह से रहेगी सर? देखिए, आर्टिकल 370 जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, ये पार्लियामेंट के अंदर है और ये सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त चल रहा है। इसलिए हमें मिलकर सबको, बल्कि हम इसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, हम चाहते हैं इसके रिस्टोरेशन के लिए सिंसियरली सब मुत्तहिद हो जाए क्या, और मरकजी सरकार पर दबाव डालें, पार्लियामेंट को कन्विंस करें और ऐसा हालात बनाएं कि मर्ग वो तो सड़कों पर निकलने से नहीं, पत्थर से नहीं, किसी से नहीं होगा, जितना डिबेट से, डिस्कशन से होगा। कितना जरूरी है आर्टिकल 370 मुल्क के मफाद के लिए। सर, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, होना चाहिए और इसके रिस्टोरेशन के लिए काम करना चाहिए। सर क्या आप मानते हैं कि ये जो 370 है, ये इलेक्शन से पहले हमको वापस मिलना चाहिए? नहीं भाई, कौन नहीं चाहेगा? आप कहते हैं इलेक्शन से पहले, मैं कहता हूँ सुबह ही अगर वापस मिले कितनी अच्छी बात। कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए शुक्रिया। ये लोगों के, इसमें जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बुनियादी मेंबरान हैं, उनसे सजाद साहब ने, शेख मोहम्मद इमरान साहब ने, अब्दुल गनी वकील साहब ने कंसेंट ली और उसमें उन्होंने मुझ पे एतबार किया और मुझे चुना। उसके लिए मैं लोगों सर, साफ और सरल सवाल, यूथ के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, ये बड़ा अहम मसला है, क्योंकि बड़े जो मसले हमारे कायद बैठे हैं, अब्दुल गनी वकील साहब बैठे हैं, हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, वो उन सवालों का जवाब देंगे। जो आपने यूथ के बारे में बात की है, यूथ के एम्प्लॉयमेंट की जब बात होगी तो केवल आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस मिलेगी जो यूथ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और आज तक हम लड़के भी आए हैं। और वाहिद पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिन्होंने खुद जेल खाए हैं, जिन्होंने खुद लाठियां खाई है, जिन्होंने खुद पुलिस से टार्चर्स खाए हैं। आई एम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम रफियाबाद जो यूपी के जेल में
6 महीने 19 दिन के लिए बंद किया गया क्योंकि हमने धारा 370 और 35A के लिए लड़ाई लड़ी थी। और मैं कहूंगा जमीनी सतह पे अगर कोई लड़ाई लड़ रही है वो केवल पीपल्स कॉन्फ्रेंस। आगे का स्टैंड क्या रहेगा आपका? यूथ जो अभी शेख मोहम्मद इमरान साहब के सदारत में यूथ को हर एक जगह बढ़ाया जा रहा है, और मैं दावे के साथ कहूंगा आने वाले दौर के अंदर खानदानी राज खत्म किया जाएगा और जितने भी यहाँ पर लोगों ने तबाही मचा रखी थी और उन खानदानों को इस धरती से पाक किया जाएगा। शुक्रिया, खुदा शुक्रिया। हाफिज। थैंक यू।